So, hello everyone, and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the session of Indian polity. So, in the last class, we have discussed the basics of parliament, जिसमें हमने पढ़ा था लोकसभा के बारे में, लोकसभा का कॉम्पोजिशन, राज्यसभा का कॉम्पोजिशन, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी. In today's session, we will talk about the various motions in the parliament, the various resolutions in the parliament. We'll talk about the question hour, we'll talk about the zero hour. All right. So let's begin with the session without any delay and let's talk about the session today. First of all, what is quorum in parliament? First of all, what is quorum in parliament? Remember, quorum से related provision is mentioned in Article 103 of the Constitution of India. If you cannot remember 3, just remember Article number 100. Article number 100 talks about the quorum in parliament. Now, what is the meaning of quorum, by the way? See, to conduct the business of parliament, a minimum number of members is required. किसी भी बिजनेस को करने के लिए, पार्लियामेंट में किसी भी काम को करने के लिए पार्लियामेंट में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, एंड दैट मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स constitutes the quorum in parliament. And what is this minimum number, by the way? It is 1/10 of the total membership. 1/10 of the total membership of the parliament, which means in case of Lok Sabha it is 50, while in case of Rajya Sabha it is 25, because total membership, the maximum membership that can happen in Lok Sabha is 550, so 1/10 will be 55, and in case of Rajya Sabha it is 250, so 1/10 will be 25. All right, so quorum, I hope it is clear. Now, what is summoning? What is summoning? So, president, it is a duty of president of India. It is the duty of president of India to summon the sessions of the parliament. दोनों ही हाउसेस, राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समन करने का जो पावर है वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है. द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन बोथ द हाउसेस. जितने भी सेशंस होते हैं, नॉर्मली देयर आर 3 सेशंस इन अ ईयर. फरवरी में होता है बजट सेशन हमारा, बजट सेशन होता है फरवरी में, ठीक है. उसके बाद होता है हमारा मॉनसून सेशन जो कि जुलाई से सितंबर तक जाता है, एंड देन जो कि रिसेंटली खत्म हुआ है विंटर सेशन, द रिसेंटली कंक्लूडेड विंटर सेशन, जो कि नवंबर दिसंबर तक चलता है, नवंबर से लेकर दिसंबर तक चलता है. एंड ऑल दी सेशंस आर समन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ हियर वन थिंग ऑल्सो, वन थिंग you should also remember that between any two session there should not be a gap of more than 6 months. मतलब 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट को सेशंस कंडक्ट करने ही होते हैं, विच मीन्स मिनिमम 2 बार एक साल में पार्लियामेंट का सेशन होगा. ऑलराइट, सो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्लियामेंट मीट्स फॉर द सेशन, सो दैट विल बी 2, बिकॉज 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता बिटवीन 2 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. ऑलराइट, so president summons the sessions of the parliament. Now, what is the meaning of adjournment and adjournment sine die? Adjournment and adjournment sine die, the power resides with the presiding officer of both the houses. प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चाहे वो स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है, या फिर पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से है, किसी के पास भी पावर, जो भी उस हाउस को उस समय प्रिसाइड कर रहा होगा उसके पास पावर होगी हाउस को एडजर्न करने की या फिर एडजर्न साइन डाई करने की. नाउ the meaning of adjournment is that the presiding officer can adjourn the house for a specified period of time. It may be hours, it may be days, or it may be weeks. ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर और एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है, then that is known as what? Adjournment of house. Now, what is adjournment signed by that? If the house is adjourned without specifying any time limit, बिना टाइम पीरियड बताए हुए कि हाउस कब दोबारा से आएगा, कब दोबारा से बैठेगा आगे सेशन में, अगर ये बिना बताए हाउस को एडजर्न किया गया है, then that is known as what? Adjournment sine die, and both the things can be done by the presiding officer of the house in both the cases, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में ही ये पावर किसके पास है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास. देन प्रोरोगेशन. देखो जनरली क्या होता है, जब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब नाउ द हाउस इज एडजर्न्ड साइन डाई, आफ्टर फ्यू डेज द प्रेसिडेंट प्रोरोग्स द सेशन ऑफ द लोकसभा. प्रोरोग करने का मतलब क्या है कि अब सेशन जो है, नाउ द सेशन इज एंडेड, अब जो सेशन है वो क्या हो गया है? खत्म हो चुका है. सो डिफरेंस बिटवीन प्रोरोगेशन एंड एडजर्नमेंट इज दैट एडजर्नमेंट कैन बी डन विद रिस्पेक्ट टू द सिटिंग, विद रिस्पेक्ट टू द सिटिंग. कोई एक सिटिंग है सेशन में और उसको क्या कर दिया गया? एडजर्न कर दिया गया. व्हाइल प्रोरोगेशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू द होल सेशन.
पूरा का पूरा सेशन खत्म कर दिया गया. एंड प्रोरोगेशन कैन बी डन बाय द प्रेसिडेंट. Prorogation can be done by the president, while adjournment signed by can be done by the presiding officer. So this is the difference. I hope this is clear. Adjournment में पूरा सेशन एडजर्न नहीं होता है, सिर्फ क्या एडजर्न होता है, दैट पर्टिकुलर सिटिंग ऑफ द हाउस. जैसा आपने देखा ही होगा कि अभी जैसे कभी भी हाउस के अंदर हंगामा हो जाता है तो स्पीकर बोलते हैं कि ये लोकसभा 2 बजे तक के लिए या 6 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. दैट इज नोन एज व्हाट, एडजर्नमेंट. और अगर वो टाइम नहीं बताए, वो सिर्फ इतना बोले दैट दिस लोकसभा स्टैंड्स एडजर्न, सिर्फ इतना अगर उन्होंने बोला है तो दिस इज व्हाट, एडजर्न साइंड है, बिकॉज वहां पे उन्होंने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन? सी दिस कैन बी हैपन ओनली इन द केस ऑफ राज्य लोकसभा, बिकॉज हमने पढ़ा था दैट राज्यसभा इज अ परमानेंट चेंबर. राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, राज्यसभा एक परमानेंट चेंबर है. सो डिसोल्यूशन कैन बी डन इन द केस ऑफ लोकसभा and it can be done by the president of India, but here इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट के पास ही पूरी ताकत है. President does not have the sole powers to dissolve the house. There are certain conditions on the basis of which the president does this. ठीक है, कुछ conditions है, उसी के basis पे president dissolve कर सकते हैं, otherwise नहीं कर सकते. Now dissolution दो cases में हो सकता है. Number one, that the Lok Sabha has completed its tenure of 5 years. Number one, that the Lok Sabha has completed its tenure of 5 years, तो वो अपने आप ही dissolve हो जाएगी. And number two, that the majority in the Lok Sabha has been lost by the leader of majority. यानी कि जो भी leader है majority party का, the leader of majority party has lost his or her majority in the Lok Sabha. In that case also, the Lok Sabha stands dissolved and it will be done by the President of India. All right. Now, in case of Lok Sabha, when Lok Sabha is dissolved, all the pending bills, all the pending resolutions, all the pending motions are lapsed. जितने भी pending bill, motion या resolution लोकसभा के सामने pending होते हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, lapse हो जाते हैं once the Lok Sabha is dissolved. Now, इससे related हम यहाँ पे वापस आएंगे. कौन कौन से बिल लैप्स होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, ये हमने यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई है, इसको देख सकते हो आप. सो ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, अ बिल लैप्सेस, एक बिल लैप्स हो जाएगा अगर इफ द बिल इज पेंडिंग जस्ट इन लोकसभा, अगर वो सिर्फ लोकसभा में पेंडिंग है, वेदर इट हैज ओरिजिनेटेड इन लोकसभा और राज्यसभा, चाहे वो लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ हो या राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ हो, बट इफ इट इज पेंडिंग जस्ट इन लोकसभा, in that case the bill will be lapsed. Number two, if it is pending in Rajya Sabha, lapse when passed by the Lok Sabha. ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या रहा? फिर डिफरेंस ये मैं बताता हूं. पहले में क्या है, पेंडिंग है किसमें, सिर्फ लोकसभा में, मतलब राज्यसभा में पास हो चुका है. अब चाहे वो लोकसभा में ओरिजिनेट हुआ था या राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ था. ठीक है. दूसरा, पेंडिंग इन राज्यसभा, लैप्सेस, अगर राज्यसभा में पेंडिंग है तो भी वो लैप्स हो जाएगा अगर लोकसभा में पास हो चुका है तो. ठीक है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिचुएशंस. नाउ देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हेन द बिल डज नॉट लैप्स. ऐसे और भी 4 कंडीशंस है जिसमें बिल लैप्स नहीं होता है. वो कौन सी 4 है? नंबर 1, इफ बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ एनी बिल जहां पे डेडलॉक था बिटवीन द 2 हाउसेस. ठीक है. So, if the president has notified joint sitting before dissolution of Lok Sabha, number 1. If the bill is pending in Rajya Sabha but not passed in Lok Sabha, does not lapse. ठीक है. Provided the bill originates in Rajya Sabha itself. Of course, ये तभी हो सकता है कि राज्यसभा में पेंडिंग है लेकिन लोकसभा में पेंडिंग नहीं है. इसका मतलब क्या है कि वो राज्यसभा में ही ओरिजिनेट हुआ होगा पहले. समझ रहे हो बात को? अगर राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा में भी पास नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, that the bill should have been originated in Rajya Sabha. तभी तो ऐसा हो सकता है. पर यहाँ पे हमने देखा था राज्यसभा में लैप्स पेंडिंग है तो लैप्स हो जाएगा अगर उसको लोकसभा ने पास कर दिया है तो. नंबर 3, बिल अवेटिंग असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स. मान लो कि दोनों सदनों से, दोनों हाउसेस से बिल पास हो चुका है एंड इट इज अवेटिंग द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, दैट टाइप ऑफ बिल आल्सो डज नॉट लैप्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा. एंड नंबर 4, a bill returned by the president for reconsideration of the houses also does not lapse. अगर कोई बिल प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा हुआ है टू बोथ द हाउसेस और इसी बीच लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो वो बिल लैप्स
नहीं होगा. ओके, so please do remember all these points. These are very very important. So many times these points have been asked in the exams. Now let's get back to the previous slides. There is one more term which is left here, lame duck session. Now what is this lame duck session? The last session of the Lok Sabha, the last session of the Lok Sabha, the last session of the Lok Sabha, उसको हम क्या बोलते हैं, lame duck session बोलते हैं. And the members of Lok Sabha which could not be elected to the upcoming Lok Sabha are known as what? Lame ducks. ऐसे मेंबर ऑफ लोकसभा जो कि अगली वाली लोकसभा के लिए नहीं इलेक्ट हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? लेम डक्स. इन द लास्ट सेशन ऑफ लोकसभा उसको हम क्या बोलते हैं? लेम डक सेशन. ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव. ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, सो यू कैन रीड इट फ्रॉम द पीडीएफ. एंड रिमेंबर, पीडीएफ जो होगा टेलीग्राम में आप लोगों के पास एक लिंक है जो कि डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पे लेके जाता है. वहां पे कोर्स बना रखा है हमने, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री टू ऑल ऑफ यू. अब सारी पीडीएफ्स वहीं पे मिलेंगी आपको. उसका टेलीग्राम का लिंक पिन हो रखा है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो. राइट, नाउ द पीडीएफ विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन द टेलीग्राम ग्रुप बिकॉज वो बहुत ज्यादा क्लटर हो जाता है, इधर उधर फैल जाता है. तो इसके लिए कोर्स बना दिया है फ्री का, जिसका लिंक टेलीग्राम में है, तो वहां से आप पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो. Now there are certain devices of parliamentary proceeding. Let's talk about these devices. Number one is question hour. The very first hour of any parliamentary sitting, किसी भी पार्लियामेंट सिटिंग का जो पहला घंटा होता है, that is devoted to question hour. ठीक है, वो किसको डिवोटेड होता है? क्वेश्चन आवर को. Now what happens in question hour? In question hour, the members ask questions to the ministers. जो मेंबर है वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, एंड these questions are answered by the minister. Now यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है, these question can also be asked to a private member who is not a minister. The question during the question hour can also be asked to a private member who is not a minister, and it can be happened in the case where private member has any role in that question. Let's say कि जैसे अभी किसान बिल था, in the formulation of that Kisan bill, this private member had a role, so the question can be asked to this private member also. All right, in the question hour. ठीक है, generally the questions are asked to the ministers, but the question can also be asked to the private member if that private member has anything related to that question. All right, now remember that there are 3 types of question, in fact 4 types of questions that can be asked. ठीक है, 4 तरीके के questions होते हैं इन द जीरो आर जो कि जनरली पूछे जाते हैं. नंबर 1 इज द स्टार्ड क्वेश्चन, एंड बिफोर द स्टार्ड क्वेश्चन एक एस्टेरिस्क मार्क जो है वो लगा हुआ होता है, एंड द स्टार्ड क्वेश्चंस आर आंसर्ड ओरली आंसर किया जाता है इनका, एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कैन फॉलो. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि कोई क्वेश्चन पूछा गया विद रिस्पेक्ट टू एनी स्कीम कि फॉर एग्जांपल हाउ मेनी फार्मर्स हैव बीन बेनिफिटेड अंडर द पीएम किसान योजना. लेट्स से दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड in the parliament to the minister of agriculture and farmers welfare. ठीक है, तो वो खड़े होके बता रहे हैं कि भाई देखो 10 लाख किसानों को फायदा मिला. So in the middle of that answer, any opposition party's MP can ask one or two or three any number of questions to that minister. ठीक है कि अच्छा आप कह रहे हो 10 लाख, तो ये बताओ बिहार में कितने लोगों को मिला. ठीक है, इस तरीके से supplementary questions can follow in case of starred questions, and these are answered orally. All right, now unstarred questions are answered in the written format, and of course supplementary questions cannot follow because the question has already submitted in the written form, and the answers will also be provided in the written form, so there is no point of supplementary questions. ठीक है, और जो जैसे हमने देखा होगा, अगेन सेम क्वेश्चन अगर हम ले लें दैट हाउ मेनी फार्मर्स हैव गॉट बेनिफिट अंडर द पीएम किसान योजना, सो व्हाट द मिनिस्टर विल डू, वो डिपार्टमेंट को भेज देंगे एंड डिपार्टमेंट एक आंसर उसका बनाएगा, और फिर वो जो आंसर है जिस मेंबर ने भी उसको पूछा है वो दे दिया जाएगा. ठीक है, एंड देन वी हैव शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस आर आल्सो आंसर्ड orally, and these are known as short notice question because the notice of less than 10 days is required for this. अगर 10 दिन से कम नोटिस पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, then that is known as what? Short notice, and these questions are answered orally. ठीक है, so starred question and short notice question are answered orally, while the unstarred question are answered in the written format. And also remember
that in the case of starred and unstarred question, generally the notice period is how much? 15 days. Generally 15 दिन का notice देना पड़ता है. Alright. Now in this case, as I told you that the questions can also be asked to the private members. ठीक है, मैंने अभी बताया था 0 hour में क्वेश्चन प्राइवेट मेंबर से भी पूछा जा सकता है. तो चौथा टाइप का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर. एंड द प्रोसीजर टू आस्क क्वेश्चन टू द प्राइवेट मेंबर्स इज द सेम. इन तीनों में से कोई एक तरीका हो सकता है टू आस्क क्वेश्चंस टू द प्राइवेट मेंबर्स. ऑलराइट. एंड रिमेंबर टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज क्वेश्चंस, द स्टार्ड क्वेश्चंस आर लिस्टेड इन ग्रीन कलर, द अनस्टार्ड क्वेश्चंस आर लिस्टेड इन व्हाइट कलर, the short notice questions are listed in light pink color, and the questions which are asked to private members are listed in yellow colors. ठीक है. अब ये कलर वाला क्वेश्चन देखो यूपीएससी में कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ठीक है अगर याद हो जाएगा, इसलिए मैंने कलर्स वही वाले रखे हैं, ग्रीन, व्हाइट, पिंक और येलो. याद हो जाता है तो बढ़िया बात है. Now let's move ahead to the another device of parliamentary proceedings, that is 0R, and this is the Indian innovation. ये पहली बात तो ये है 0R is not mentioned in the rules of procedure. It is not mentioned in the rules of procedure. Do remember this, number one, and it is an Indian innovation. ठीक है, ये हमारे पार्लियामेंट में ही शुरू हुआ था, this 0R. Now what is this 0R? In 0R, guys, what happened is that the questions of urgent public importance are asked. The questions of urgent public matters या importance are asked in 0R. Now just after the question hour 0R starts, and 0R जो है वो चलता है कब तक? जब तक कि दिन का जो मेन एजेंडा है वो शुरू नहीं होता. जनरली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 noon. जनरली इट स्टार्ट्स फ्रॉम 12 noon और ये तब तक चलता है. जनरली ये देखो एक एमपी को 3 मिनट मिलते हैं इसमें बोलने के लिए जनरली, बट वो ज्यादा भी हो जाते हैं कभी कभी. तो ये जो सेशन है लगभग 30 से 60 मिनट के बीच में चलता है, कोई फिक्स नहीं है, कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है. ऑलराइट. Now these are not mentioned in the rules of procedure, as I told you. No prior notice required to ask these questions, and these are starts, and the 0R starts immediately after the question hour, and ये कब तक चलता है? It is conducted till the main agenda of the day. ठीक है. Now यहाँ पे एक बात याद रखना, generally ऐसा होता है that question hour precedes 0R. Generally ऐसा होता है, but it is the discretion of the presiding officer of that house कि वो 0R को क्वेश्चन आर से पहले करा दे. ठीक है. ऑफ कोर्स इट कैन बी डन विद द परमिशन ऑफ द हाउस ओनली. तो ये हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है. ये जनरल कन्वेंशन है दैट पहले क्वेश्चन आर होगा, उसके बाद 0R होगा, फिर हम मेन एजेंडा पे जाएंगे. ये जनरल कन्वेंशन है, बट दिस कन्वेंशन कैन बी रिवर्स. पहले 0R भी हो सकता है, फिर क्वेश्चन आर भी हो सकता है. इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एंड ऑफ कोर्स प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन डिसाइड इट विद द परमिशन ऑफ दैट हाउस. ठीक है, तभी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. ऑलराइट. तो ये याद रखना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले क्वेश्चन आर होगा फिर 0R होगा. इनफैक्ट आपको याद होगा 2020 के मॉनसून सेशन में सरकार ने क्वेश्चन आर ही हटा दिया था, जिसके बाद काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई भी थी. ठीक है. तो इट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिसाइडिंग हाउस हु एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द हाउस. ठीक है. मूविंग अहेड टू द मोशंस इन पार्लियामेंट. अब क्या क्या अलग अलग टाइप के मोशंस पार्लियामेंट में मूव किए जाते हैं उसकी बात करते हैं. सो मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन इन पार्लियामेंट: substantive, substitute and subsidiary. Substantive, substitute and subsidiary, these 3 types of motions are generally moved in the parliament. और इसी के अलग अलग टाइप्स होते हैं. सो सब्सटैंटिव मोशन क्या होता है? सब्सटैंटिव, इसका वर्ड से ही पता चलता है, इट होल्ड्स सम सब्सटेंस. इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल. इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल, मतलब it is itself so much significant that no one can ignore this. ठीक है. and in these substantive motion the matters of urgent public importance are taken. मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैटर्स होते हैं उसको इसमें लिया जाता है. like for example removal of chief election commissioner, impeachment of president, removal of judge of any supreme court, removal of judge of any high court, removal of CAG. इस तरीके जो बड़े बड़े मैटर्स हैं जिसका एक बड़ा सिग्निफिकेंस है, that is introduced in the parliament through the substantive motion. ठीक है. I hope this is clear. Now then we have a substitute motion. मतलब substantive motion का मतलब ये है कि एक बड़ा मोशन, जो मेजर मोशन है जिसके थ्रू हम किसी एक बड़े बिल को पास कराना चाहते हैं या कोई बड़ा इंपॉर्टेंस का चीज है. दूसरा है substitute motion. This is generally used by the opposition party.
दिस इज जनरली यूज्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टी, जनरली ऑपोजिशन पार्टी इसको यूज करती है, एंड इट इज मूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओरिजिनल मोशन। लेट्स से देयर इज एन ओरिजिनल मोशन गोइंग ऑन इन द हाउस, ठीक है, एंड बीच में ही एक सब्स्टिट्यूट मोशन लेके आ गई ऑपोजिशन पार्टी। जनरली सब्स्टिट्यूट मोशन पास नहीं होता है बिकॉज जो हाउस जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के या जो चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा के, वो मेजॉरिटी पार्टी के ही होते हैं। तो इन मोस्ट ऑफ द टाइम सब्स्टिट्यूट मोशन जो होता है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है, इट इज नॉट एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट ऑफ कोर्स अब हमारे पास एक डिवाइस है तो हमें पढ़ना तो है। सो इट इज मूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओरिजिनल मोशन एंड proposes an alternative to it. If adopted, it supersedes the original motion. अगर इसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा तो ओरिजिनल मोशन को ही क्या कर देगा, सुपरसीड कर देगा। ऐसा एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आता है 1991 में जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर थे हमारे उस टाइम के, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक मोशन मूव किया था कि दिस हाउस कंसीडर्स दी, जो भी उस समय 1991 में थोड़ा इंटरनेशनली गड़बड़ चल रहा था, लाइक फॉर एग्जांपल डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कंप्लीट हुआ था, पाकिस्तान का प्रेशर था हमारे ऊपर, एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल क्राइसिस भी थी। सो एक मोशन मूव हुआ था इन दी हाउस बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कि भाई ये हाउस जो है, दिस हाउस कंसीडर्स दी मैटर्स ऑफ अर्जेंट इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। उसके विरोध में जसवंत सिंह जो कि बीजेपी के थे, एंड एक चंद्रजीत यादव, ठीक है, सेकंड पर्सन वाज चंद्रजीत यादव, इन्होंने एक सब्स्टिट्यूट मोशन मूव किया था, ठीक है। ये एक्सेप्ट भी हो गया था, ऑल्दो ये वापस ले लिया था इन लोगों ने बाद में, बिकॉज सब्स्टिट्यूट मोशन कैन बी विथड्रॉन एनी टाइम जिन्होंने उनको प्रपोज किया है, ठीक है। द सब्स्टिट्यूट मोशन कैन बी विथड्रॉन बाय द प्रपोजर एनी टाइम। नाउ इट इज मूव्ड इन सब्स्टिट्यूशन, ये याद रखना, ऑफ द ओरिजिनल मोशन, एंड इफ अडॉप्टेड इट सुपरसीड्स द ओरिजिनल मोशन। आई होप दिस इज क्लियर। जनरली ये ऑपोजिशन पार्टी यूज करती है ताकि जो भी ओरिजिनल मोशन है उसको हटाया जाए और उसकी जगह दूसरा मोशन लाया जाए। दूसरा मोशन बिल्कुल अलग नहीं होता है, ऑफ कोर्स वो उसको उसी के अंदर कुछ चेंजेस करके लाया जाता है, ठीक है। नाउ देन वी हैव अ सब्सिडरी मोशन। दिस मोशन हैज नो सिग्निफिकेंस ऑफ इटसेल्फ, इसका कोई खुद का सिग्निफिकेंस नहीं होता है। इट इज मेड इन रेफरेंस टू अनदर ओरिजिनल मोशन। जो सब्सिडरी मोशन होता है, इसके नाम से पता चल रहा है सब्सिडरी, ये मेरा सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी जो होता है वो सपोर्टिंग होता है बेसिकली, and it is made in reference to the another original motion. For example, let's say कि there is a motion in the parliament for passing of a bill, ठीक है। पार्लियामेंट में कोई बिल है, किसान बिल ही ले लेते हैं, आजकल बहुत न्यूज में था वो, तो किसान बिल इंट्रोड्यूस हुआ एंड उस पर डिस्कशन चल रही है, ठीक है, डिस्कशन चल रही है। अब डिस्कशन खत्म होने के बाद मिनिस्टर खड़े होंगे और वो बोलेंगे कि नाउ आई मूव दिस बिल इन द बिफोर द हाउस फॉर द वोटिंग। तो ये क्या है, ये एक मोशन है, and this comes under the heading of subsidiary motion, जहां पे मिनिस्टर ने क्या बोला कि now since the debate is over, now I move this bill before the house for the voting। तो ये भी क्या है, एक मोशन है। the minister is presenting the bill before the house for the voting, तो ये क्या है, एक मोशन है, and this motion comes under subsidiary motion because it is a supporting motion। ये क्या है, एक supportive motion है because it is made in reference to another original motion। जो किसान बिल है उसकी डिबेट जो कंप्लीट हो गई है उसी के रेफरेंस में ये मोशन लाया गया है कि ठीक है, नाउ द डिबेट इज ओवर, नाउ आई एम प्रेजेंटिंग इट बिफोर द हाउस फॉर वोटिंग, ऑलराइट। एंड रिमेंबर सब्सिडरी मोशन इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 इज एंसिलरी मोशन, यूज्ड एज अ रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग विद वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस। इसका एग्जांपल अभी दिया मैंने, किसान बिल वाला, दिस इज एन एंसिलरी मोशन। नंबर 2, सुपरसीडिंग मोशन। Superseding motion is generally used by the opposition party to delay the process, to delay the business of the houses। जैसा हमने देखा है कि कोई बिल मान लो पेश हुआ तो जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं वो चिल्लाने लग जाते हैं कि नहीं, द बिल शुड बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट्री कमेटी, इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास नहीं भेजा गया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। सो दिस जनरली सुपरसीडिंग मोशन जो होता है, इट सीक्स टू सुपरसीड एन इशू एंड मूव्ड इन कोर्स ऑफ डिबेट ऑन अनदर इशू। कोई सी एक उस पर डिबेट चल रही है, उसके बीच में ऑपोजिशन पार्टी के लोग खड़े हो गए और चिल्लाने लग गए, इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरसीडिंग मोशन। ऑल्दो दिस सुपरसीडिंग मोशन शुड बी मूव्ड इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्मेट, बट ऐसा होता नहीं है, हमने देखा है। वो हमारे जो एमपी हैं अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो वेल में कूद के चिल्लाने लग जाते हैं, ठीक है।
And the third type of subsidiary motion is the amendment motion, which seeks to modify the original motion. ये जनरली होता है इन द केस ऑफ बजट सेशन. जैसे बजट पढ़ा जा रहा होता है, जब बजट पे वोटिंग हो रही होती है, इन दैट केस देयर आर वेरियस अमेंडमेंट्स विच आर जनरली डन इन द केस ऑफ बजट. तो अगर ओरिजिनल मोशन में किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है, सो इन दैट केस अमेंडमेंट मोशन इज मूव्ड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. Now moving ahead to the closure motion. This is another type of motion. It is introduced by a member to cut short the discussion on any vote on the motion. कोई मोशन चल रहा है, ठीक है, उसमें डिबेट को हमें क्या करना है, कट शॉर्ट करना है. जनरली ये बजट में देखा जाता है. बजट पूरा थोड़ी ना पढ़ा जाता है. पूरा बजट पढ़ेंगे तो दिन रात यानी कितना टाइम चला जाएगा. या जीएसटी का बिल था जैसे, उसको भी क्लोजर मोशन के थ्रू जल्दी से निपटाया गया था. तो जो भी बड़े बड़े बिल पास होने होते हैं वो पूरे नहीं पढ़े जाते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि पूरा बिल तो लगभग हजारों पन्नों का हो जाता है कभी कभी इन सर्टेन केसेस. तो इन दैट केस क्लोजर मोशन का इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, टू कट शॉर्ट द डिस्कशन बेसिकली. सो क्लोजर मोशन इज व्हाट, इट इज यूज्ड टू कट शॉर्ट द डिस्कशन. ऑलराइट, एंड देयर आर 4 टाइप्स. नंबर 1 इज सिंपल क्लोजर. सिंपल क्लोजर मोशन is presented, is put before the house when the debate is over, when the discussion is over. मान लो जैसे कि मैंने बताया कि वोट हो गया, उसके बाद उसने जो स्पीकर है या फिर जो चेयरमैन है राज्यसभा के, उन्होंने बोल दिया कि नाउ द बिल स्टैंड्स पास्ड. अब बिल ये पास माना जाता है, तो उसके बाद वो क्लोजर मोशन हो जाएगा, डिस्कशन पूरी खत्म. सो व्हेन मैटर इज सफिशिएंटली डिस्कस्ड. ठीक है. नंबर 2, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स. अब देखो क्या है, देयर आर सर्टेन बिल्स, देयर आर सर्टेन लॉज या देयर आर सर्टेन क्लॉजेस, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा लेंदी है. कोई बिल है जो कि बहुत ज्यादा लेंदी है, सो इन दैट केस क्लॉजेस ऑफ अ बिल और अ लेंदी रेजोल्यूशन आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स. उनको हम पार्ट्स में कर देते हैं और उन पार्ट्स की वोटिंग कर दी जाती है. एंड देन डिबेट इज डन ऑन द पार्ट एज अ होल एंड पुट टू वोट. ऑलराइट, दिस इज नोन एज व्हाट, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स. नंबर 3 is the kangaroo closure. In this type of closure, only important clauses are taken for the debate और उन्हीं की voting करा दी जाती है. Alright, only important clauses are taken up for the debate and the voting is done with respect to these important clauses. इसको हम क्या बोलते हैं, kangaroo closure. And then we have guillotine closure. जब किसी undisclosed clause है बिल का, उसको भी voting के लिए रख दिया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, guillotine closure. Now there is a difference between kangaroo and guillotine. What is the difference? इसमें क्या है, only important clauses are discussed and then the bill, the act is put for the voting. ठीक है. Now in guillotine क्या है, when undisclosed clauses, जो undisclosed clauses हैं उनको भी हमने किसके लिए रख दिया, वोटिंग के लिए रख दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, guillotine closure. I hope this is clear. Moving ahead to the privilege motion. What is this privilege motion, by the way? See, privilege motion is moved by any member. It can be moved by any member of the parliament if that member feels that the minister, that any particular minister is breaching the parliamentary languages, the parliamentary procedures, the parliamentary set of rules. अगर कोई minister breach करता हुआ पाया जाता है of parliamentary privileges, then that against that minister, this privilege motion can be moved by any member of the house. ठीक है. Then we have calling attention motion. What is this? It can be introduced by any member to call attention of a minister. As the name suggests, जैसे नाम से हमें पता चल रहा है that किसी की इसमें attention को खींचा जा रहा है. So it is introduced by a member to call attention of a minister to a matter of urgent public importance and to seek an answer from that minister. कि वो पूछे उससे कि भाई हाँ बताओ इस पे क्या राय है आपकी. Alright. So calling attention motion, it can be introduced by any member to call attention of any minister to a matter of urgent public importance and to seek an answer for that particular issue or the matter. ठीक है. This is known as what, calling attention motion. Moving ahead to the adjournment motion. This is very very important. इसमें से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है. So remember, adjournment motion draws attention of the house to a definite matter of urgent public importance. अब यहाँ पे एक वर्ड ध्यान रखना, डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. डेफिनेट होना चाहिए मैटर. मतलब अब यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन आप ऐसे कोई भी जाके मेंबर ये नहीं कह सकता कि भाई सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है. दिस इज नॉट अ डेफिनेट मैटर. डेफिनेट मैटर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे माइग्रेशन का इशू बहुत ज्यादा हो रहा था, दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ डेफिनेट मैटर.
एंड इट कैन बी मूव थ्रू द एडजर्नमेंट मोशन। और जनरली ये जितने भी ऑपोजिशन पार्टी वाले होते हैं ना, ये एक्सेप्ट होते ही नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं स्पीकर जो है अपना ही आदमी होता है और जो चेयरमैन है वो भी अपना ही आदमी होता है राज्यसभा का। तो ये चीज़ें जनरली एक्सेप्ट की नहीं जाती। बट येस, कभी कभी जब सरकारें कोलिशन में होती हैं या इन सर्टेन केसेस माइनॉरिटी में भी रही हमारे देश में सरकार, तो ये सारी चीज़ें काम आती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड बी अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। इट कैन नॉट बी अ जनरल मैटर, ये कोई जनरल मैटर नहीं हो सकता, ठीक है, नंबर वन। एंड इट नीड्स सपोर्ट ऑफ 50 members, at least 50 members are required to move this any kind of adjournment motion, ठीक है। अब इसको adjournment motion इसलिए बोलते हैं because it interrupts the normal business of the house. It is known as adjournment motion because it interrupts the normal business of the house, and that side is also it is also known as extraordinary device in the parliamentary proceeding. Number 3, it involves element of censure against the government, and hence the Rajya Sabha is not permitted to make use of this device. ये किसके खिलाफ होता है? सरकार के खिलाफ होता है। तो ऑफ कोर्स राज्यसभा में जो लीडर है वो जनरली लोकसभा का ही होता है, वैसे कहीं का भी हो सकता है। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट के खिलाफ है, ठीक है, ये गवर्नमेंट के ऊपर रोक लगाने के लिए ये मूव किया जाता है। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट यूज्ड इन राज्यसभा। एंड वंस एक्सेप्टेड, अगर एडजर्नमेंट मोशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, and who has the power to accept? Of course, the presiding officer. If accepted, the discussion cannot be less than 2.5 hours. It should be more than 2.5 hours. The discussion under the adjournment motion should be conducted for more than 2.5 hours. 2.5 घंटे से ज्यादा की इसमें डिस्कशन चाहिए। Now there are certain restrictions on moving the adjournment motion. Number 1, matter should be factual and urgent public importance. मैंने बताया था factual matter होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी जाके की सरकार जो है साहब वो गरीबी पे काम नहीं कर रही है, तो दिस इज नॉट फैक्चुअल, ठीक है, मानते हैं कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, बट दिस इज नॉट फैक्चुअल। उसी टाइम का चल रहा है कोई अगर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, देन दैट शुड बी फैक्चुअल आल्सो। नंबर 2, देयर शुड बी ओनली वन मैटर। 4 मैटर्स पे नहीं लेके आ सकते एडजर्नमेंट मोशन कि सरकार जो है गरीबी नहीं हटा रही है, सरकार पढ़ाई भी नहीं करवा रही है, सरकार हेल्थ फैसिलिटीज को भी इंप्रूव नहीं करा रही है, ऐसा नहीं हो सकता। So the adjournment motion can be moved only with one matter. Number 2, it should not be framed in general terms. General terms में नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया। Number 4, it should not to raise questions of a privilege. Privilege का कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। Not to revive old discussions. अगर मान लो किसी मैटर पे कोई पहले डिस्कशन हो चुका है किसी हाउस में, so in that case also adjournment motion cannot be moved. जैसे मैंने बताया कि माइग्रेशन के इशू पे हम उठा सकते थे लास्ट ईयर, तो अगर माइग्रेशन पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है तो इन दैट केस एडजर्नमेंट मोशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा या उसको मूव भी नहीं किया जा सकता। नॉट टू डील विद मैटर अंडर एडजुडिकेशन बाय कोर्ट्स। अगर कोई मैटर कोर्ट में है तो उससे रिलेटेड भी एडजर्नमेंट मोशन नहीं आ सकता। एंड लास्ट, कैन नॉट रेज अ मैटर दैट कैन बी रेज्ड इन डिस्टिंक्ट मोशन। अगर किसी दूसरे मोशन में कोई मैटर ऑलरेडी रेज्ड है तो in that case also adjournment motion cannot be moved. All right, so these are certain restrictions on the adjournment motion. Moving ahead to the no confidence motion, 2019 में मूव हुआ था अगेंस्ट द करंट गवर्नमेंट, जो बीजेपी की सरकार है उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हुआ था। बट ऑफ कोर्स दैट वाज द कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हम सब जानते हैं बीजेपी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में थी, आज भी है। उस टाइम अराउंड 280 सीटें थी उनकी खुद की और अलायंस पार्टीज भी थी, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का कोई मतलब था नहीं। बट यस, चलो कुछ करना है तो कर रहे हैं। सो इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहली चीज तो ये हो गई कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ, द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल रिजाइन, विल फाइल द रेजिग्नेशन, ठीक है। सो इट इज मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नॉट अ पर्टिकुलर मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर, नंबर 1। नंबर 2, it is moved to ascertain the confidence of Lok Sabha in the Council of Ministers. So हमने पढ़ा है that जो लोकसभा है उसके अंदर जब तक मेजॉरिटी रहेगी तभी तक सरकार बनी रहेगी। जैसी मेजॉरिटी खत्म, मेजॉरिटी का मतलब जैसी लोकसभा का कॉन्फिडेंस गया वैसी आपकी सरकार गई। सो टू ascertain the confidence of Lok Sabha in the Council of Minister, the no confidence motion is moved, and this motion needs the support of 50 members. कम से कम 50 मेंबर्स होने चाहिए। तभी आप सबको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने
जो पिछला वाला नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो कांग्रेस पार्टी ने मूव नहीं किया था, कोई दूसरी पार्टी थी, आई गेस तेलुगु देशम ने मूव किया था, बिकॉज कांग्रेस के पास 50 मेंबर खुद के है ही नहीं, खुद के 50 मेंबर नहीं है उनके पास, तो इसलिए उन्होंने तेलुगु देशम को बोला था, ऑल्दो उनके पास भी नहीं थे, बट यस क्योंकि कांग्रेस के पास कम थे तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. So, no confidence motion is moved against the entire council of minister to ascertain the confidence of Lok Sabha, and it needs the support of 50 members to be admitted. And if the no confidence motion is passed in the Lok Sabha, then the entire council of minister has to will file resignation, and of course इसको हम कहते हैं सरकार का गिर जाना. ठीक है, और बहुत बार सरकार गिर चुकी है, कोई नई बात नहीं है. कॉन्फिडेंस मोशन कब लाना होता है? सी देर आर सर्टेन केसेस जब जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी में बनी है या फिर कोalition में बनी है. There are certain cases when government is formed with minority or coalition. In that case, president asked the leader of that coalition party or the minority party to seek confidence in the Lok Sabha in a particular period of time. ये हमने पढ़ा भी था in case of prime minister. And then we have censure motion. Now censure motion is somewhat related to the no confidence motion, but there are certain differences. First of all, it can be moved against a single member or the entire council of ministers. So the first difference is what? In case of no confidence motion, it can be moved against the entire council of ministers only, but the censure motion can be moved against a single member or the entire council of ministers. Okay? Now this is moved to ascertain the confidence in Lok Sabha of the council of minister, but this is moved to censure council of minister for specific policies and actions. मान लो कि जैसे अभी किसान बिल का एग्जांपल लेके चलते हैं, बढ़िया है, किसान बिल मूव हुआ था तो इन लोगों ने सेंसर मोशन लाने की कोशिश करी थी, बट ऑफ कोर्स दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड. इन्होंने बोला था कि ये जो आपका पॉलिसी है, ये जो एक्ट है, किसान का जो बिल है, जो एक्ट बना है, ये जी बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है, ये है वो है वगैरह वगैरह, बहुत सारे आर्गुमेंट्स थे. सो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? सेंसर मोशन, बिकॉज दैट वाज मूव टू सेंसर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसी. ठीक है, एंड दैट वाज किसान बिल. एंड देन वी हैव मोशन ऑफ थैंक्स. सो आप सबने देखा होगा जब लोकसभा बनती है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द लोकसभा is addressed by the president, that is known as what? Motion of thanks. And also the very first session in a fiscal year, जो पहला सेशन fiscal year का शुरू होता है, that is also addressed by the president of India, and that is also known as what? Motion of thanks. All right, now these are the differences between censure motion and no confidence motion. That is given, या आप PDF में से पढ़ लेना. Moving ahead to the no day yet named motion. Now let's say there is a motion which is accepted by the speaker, but no date is assigned for its discussion. पर कोई date assign नहीं हुई for its discussion. That type of motion is known as what? No day yet named motion. Okay. And then we have dilatory motion. It is a motion for the adjournment of the debate on a bill or a motion or a resolution. कोई किसी बिल पे, किसी मोशन पे या किसी रेजोल्यूशन पे अगर डिबेट चल रही है तो उसको हटाने के लिए, उसको डिले करने के लिए, उसको एडजर्न करने के लिए दिस टाइप ऑफ मोशन इज मूव्ड इन द हाउसेस. ठीक है, सो गाइस दीज आर द टाइप ऑफ मोशन. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द रेजोल्यूशंस इन पार्लियामेंट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the difference between resolution and motion? See, resolutions, all the resolutions are the substantive motion. That is it. All the resolutions are the substantive motion, and all the motions need not necessarily be put for voting, but all the motions should be considered for voting. ठीक है, जितने भी motions हैं उनको वोटिंग के लिए रखा जाएगा, ये बात जरूरी नहीं है, बट जितने भी रेजोल्यूशंस होंगे उनको वोटिंग के लिए रखना पड़ेगा. दिस इज द टू बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रेजोल्यूशन एंड मोशन. नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस दैट कैन बी मूव्ड इन पार्लियामेंट. नंबर वन इज प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन, and as the name suggests, it is moved by a private member, and only one day is assigned to such a resolution, that is Friday. This the private members resolution are generally discussed on Fridays. Government's resolution, of course, if it is a government resolution, then it must be moved by a minister. ठीक है, इसको मिनिस्टर मूव करता है, and it can be discussed any days between Monday to Thursday. Monday to Thursday कभी भी इसको डिस्कस कर सकते हैं. And there are certain statutory resolution which can be moved either by a private minister or a
or a minister, private member, sorry, either by a private member or a minister, and the time is allocated for its discussion based on the recommendation of business advisory committee. ठीक है, इसको जो टाइम दिया जाता है वो कब दिया जाएगा, जब बिजनेस एडवाइजरी कमिटी रिकमेंड करेगी कि ठीक है भैया इस दिन इस समय पे ये वाली चीज जो है वो डिस्कस होगी. ठीक है, so these are the three types of resolutions that can be moved in the parliament. I hope this is clear, and these are the differences between resolution and motion. You can read it from here. Now there are certain other important devices in the parliament. There are four other, चार हैं, एक दो यहाँ पे हैं, दो अगली स्लाइड पे भी हैं, चार और हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं जल्दी से. Number one is point of order. What is this? See, the point of order. A member can raise a point of order when the proceedings of the house do not follow the normal rules of procedure. अगर हाउस में लगता है किसी भी मेंबर को कि भाई देखो जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा, तो इन दैट केस दिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर कैन बी रेज्ड बाय एनी मेंबर. एंड रिमेंबर, ऑन दिस पॉइंट ऑफ ऑर्डर नो डिबेट इज अलाउड. कोई डिबेट नहीं होगी. एंड ऑफ कोर्स ये कब हो, ये कौन रेज करेगा, कोई ऑपोजिशन मेंबर ही कर सकता है, खुद का आदमी तो करेगा नहीं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट पॉइंट ऑफ ऑर्डर. if the procedure going on in the parliament is not going on according to the rules of procedure, then in that case a point of order can be raised by a member, and that generally belongs to the opposition party, and no debate is allowed in this case. Okay, moving ahead. हाफ एन आवर डिस्कशन, ऑफ कोर्स इट इज डन फॉर हाफ एन आवर, नाम से पता चल रहा है आधे घंटे के लिए इसको डिस्कस किया जाता है. एंड एनी मैटर विच इज ऑफ सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और स्पीकर को लगता है कि हाँ डिस्कस किया जाना चाहिए तो ठीक है कर लेते हैं, पर आधे घंटे के लिए, उससे ज्यादा नहीं. ठीक है, एंड रिमेंबर 3 days कैन बी अलॉटेड फॉर अ डिस्कशन फॉर दिस टाइप ऑफ डिस्कशन इन अ वीक. एक वीक में 3 दिन मिलते हैं. नो फॉर्मल मोशन और वोटिंग, कोई फॉर्मल मोशन नहीं है ये और ना ही इस पे कोई वोटिंग होती है. ठीक है, दिस इज व्हाट हाफ एन आवर डिस्कशन. मूविंग अहेड to the short duration discussion, it is also known as 2-hour discussion because discussion should not exceed 2 hours. इसको 2 घंटे का डिस्कशन भी बोला जाता है, 2-hour discussion बोला जाता है बिकॉज जो डिस्कशन है वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए. एंड इन दिस केस ऑल्सो नो फॉर्मल मोशन इज रिक्वायर्ड एंड नो वोटिंग कैन बी विल बी डन. कोई भी वोटिंग नहीं होती इस केस में. एंड इसमें 2 दिन अलोकेट किए जाते हैं. ठीक है, 3 दिन उसको मिल गए हाफ एन आवर डिस्कशन को, 2 दिन इसको, 5 दिन हो गए. 5 ही दिन चलता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है. And then we have one more device in the parliamentary proceedings, that is special mention. Now let's say कि आपको ऐसा मैटर फंस गया जो कि किसी भी मोशन के थ्रू या किसी भी रेजोल्यूशन के थ्रू नहीं गया है. ठीक है, a matter which cannot be raised through any device is raised through special mention in the Rajya Sabha. ठीक है, while in the case of Lok Sabha this device is known as what, notice mention. ठीक है, राज्य सभा के केस में इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल मेंशन, और लोकसभा के केस में इट इज नोन एज व्हाट, नोटिस मेंशन. एंड any matter which cannot be raised through any other device is raised through this special mention. Okay, but generally ऐसा होता नहीं है, कोई ना कोई डिवाइस के थ्रू मैटर रेज कर दिया जाता है. ठीक है, so guys that's it for the session today. I hope all the motions and all the resolutions are clear. In the next session we will talk about the procedure of passing of bills in the parliament. ठीक है, उसमें हम समझेंगे कि बिल कौन कौन से स्टेजेस से गुजरता है. So I'll see you in the next session on Saturday. Goodbye, take care, and God bless.